हूं प्रजातंत्र में जनता को हर चीज जानने का अधिकार है। सूचना के अधिकार ने निश्चित तौर पर यह अधिकार जनता को दिया है और सरकार ने तो इसको लागू कर दिया, कानून बना दिया, राज्यों ने भी अपने अपने हिसाब से इसको चला रही हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है दोनों पक्षों में। एक तो जब सूचना का अधिकार लागू हो गया देश में तो सरकारों को अपने कामकाज को ठीक करना चाहिए। भाई इसी वजह से तो सूचना अधिकार आया कि सरकार अपना कामकाज ठीक नहीं कर रही, जनता के हित में नहीं कर रही। और लेकिन सूचना के अधिकार के तहत जानकारी वही मांगी जाए जो जनता के हित में हो। कहीं कहीं देखा जाता है कि व्यक्तिगत रूप से किसी को परेशान करने के उद्देश्य से भी जानकारी मांगी जा रही है। इसी तरह से सरकारें कुछ न कुछ अपनी चीजों को छिपाने के लिए उनको ऐसे अधिकारियों को बिठा देंगे जो सूचना के अधिकार के तहत आए हुए आवेदन पर ठीक से विचार नहीं करते। ये दोनों पक्षों में व्यापक सुधार करने की जरूरत है। कई जगह ये देखने को आया है कि आरटीआई के वर्कर ब्लैकमेल भी करते हैं, कुछ ऐसी सूचनाएं निकाल लेंगे और उसके चलते लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। ये बहुत पवित्र काम है, ये इतना बढ़िया काम है लोकतंत्र के लिए, इससे बढ़िया कोई काम और हो नहीं सकता। सूचना का अधिकार बिल्कुल बहुत अधिकार ये हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं पारदर्शिता होनी चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। राय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सूचना के अधिकार को आए हुए इतना वक्त हो गया है, लेकिन जैसा कि रमेश बता रहे थे हमारे सहयोगी कि अगर आप बात करें कि जिन लोगों को इन शिकायतों पर इनका निपटारा करना होता है, इनके बारे में जानकारी देनी होती है, ना तो उन्हें सही से ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें पूरी ट्रेनिंग प्राप्त है, ना ही जो लोग इस तरह की आरटीआई भरते हैं। कई लोग ये सवाल करते हैं कि फॉर्म कहाँ से मिलते हैं, कहाँ जाया जाता है, किस तरह भरा जाता है। शहरों में तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, ग्रामीण इलाकों में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको लगता है इन तमाम दिक्कतों को भी दूर किए जाने की जरूरत है? See, I think the RTI is today an emerging institution. It's an institution which has been conceptualized to give our democracy more teeth. It's also to strengthen our democratic framework. Information is always power. So therefore, if you are in a position to ask for information and if mandatory information has to be given, then it acts as a, in many ways it acts as a watchdog. Now, having said all that, today if you see the institution, and I completely agree, we are not paying enough attention to institutionalization in a proper way. That is, if you don't have a place, a roof over your head, if you do not have funds which will come to you without having to be, gratify the government, if you do not have your own sources of funds, and if you do not have training of your manpower, and if you don't have the systems in place, then I think the institution itself will atrophy. That is, over a period of another 5 to 6 years, it will come to such a stage that it will become again a mediocre organization. Mr. Ehring, what would you like to say about this? Yes, I think I'll agree to Mr. P.D. Rai in this case, but of course, like the people here in the cities, they are more, aware of the situations of what is the RTI Act. But we cannot just deny that, no, in the rural areas people do not know. Because like my very learned colleague, Mr. Ganesh is saying, that the RTI is used for other ways, for some, very negative. We are an expert in misusing a particular thing before the use begins. But the RTI, when it was introduced, it had come so that, like Mr. Rai is saying, that it is the system of our country would improve, because all the systems that we have seen right from, because we have this red tapeism, not only, we cannot just blame ourselves also, we will have to see right down to the grassroots also, because from there it starts. You will see that people, they have a very negative attitude of it. We have RTI activists throughout, even in the most interior parts of, you can say Arunachal or Sikkim or even in Jammu and Kashmir, we have RTI activists, and they are taking, they come with a good cause. But there are something which have, which takes us in the wrong path also. That has to be checked. The institution, it has to be, strengthened, and we have to select, good people to, be the chairman or members of these, RTI, thing. Right, otherwise, and not the yes, rehabilitation place like for we were many saying that, okay, we make collections, say, especially in the, for one form, for one paper, they are charged 10 rupees in Delhi. Of course, in the States, we take 2 rupees, and for, below poverty people, free of cost. But who's going to make the payments for that? The state governments cannot make that payment. Now, we have to strengthen, because we have seen that as per the report, you'll see that so much of,
we have not, returned, and so many officers also have been imposed fine on. But from where will they get the? तो आप कह रहे हैं सूचना के अधिकार को सशक्त बनाने के लिए अधिकारी जो हैं वो बेहतर नियुक्त होने चाहिए, पूरी मशीनरी को बेहतर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं सिर्फ ये सरकार के स्तर से ही बात नहीं आती है। जो लोग बहुत संक्षेप में वक्त आप जो कह रही हैं बिल्कुल मैं उसी के आगे बढ़ा रहा हूँ। ये निश्चित तौर पर सूचना के अधिकार आने के बाद सरकारों को क्या सोचना चाहिए, ये तो ठीक है कि अच्छे अधिकारी नियुक्त करो, सब जगह सर्वसुलभ करो, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपने काम को भी तरीका बदलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी लोक सेवा प्रदाय गारंटी किया, सीनियर सिटीजन्स के सवाल टाइम लिमिट तय कर दिया। उस टाइम लिमिट में आपका काम होना ही होना 100%, नहीं होगा तो अधिकारी को मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां इस तरह का उदाहरण जो है वो सामने आया। इसी तरह से राज्यों को अपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं प्रयास करने की जरूरत है ताकि इस अधिकार को और मजबूत बनाया जा सके। एजेंडा में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कोयला परियोजनाओं की स्वीकृति को लेकर अब अगला जो सवाल है उस पर चर्चा करेंगे। Welcome back to Agenda. Well, India is the third largest producer of coal in the world after China and USA. But the irony is that we are running short of coal, and certainly it has an impact on the power generation capacity of the country. Let's start with you, Mr. Singh, without wasting any time. What would you like to say about the shortage of coal? Why is it that we are running short of coal in the country, a country which is known for producing coal in such huge amounts? हमारे देश में कोयले का भंडारण बहुत है और कोल कंपनियां जो काम कर रही हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही। उनको वो कह रहे हैं कि साहब हमको जो सुविधाएं पहले उपलब्ध कराई गई थी वो सुविधाएं हमारी बढ़ाया नहीं, मैन पावर हमारा घट रहा है, मशीनी पावर हमारा घट रहा है, इस वजह से हम उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे। सरकार इस दिशा में उनकी मदद नहीं कर रही। दूसरा, कोयले की चोरी बहुत हो रही है, भयंकर कालाबाजारी हो रही चोरी की कोयले की। आज हमारा विद्युत का उत्पादन देखिए, जहाँ थर्मल पावर कोयला खदान के बगल में लगे हैं उनको 24 आवर्स थर्मल पावर चलाने के लिए कोयला नहीं मिल पा रहा। मध्य प्रदेश जैसे अनेकों राज्य हैं जिनकी रोज शिकायतें रहती हैं कि हम 24 आवर्स के लिए कोयला मांगते हैं, कभी 13 घंटे के लिए मिलता है, कभी 14 घंटे के लिए कोयला मिलता है। कहते हैं विदेश से आयात करिए आप। अब विदेश से जो कोयला आयात होगा तो निश्चित तौर पर महंगा आएगा, महंगा आएगा तो विद्युत का उत्पादन महंगा होगा। जब विद्युत का उत्पादन महंगा हो तो उपभोक्ता को भी महंगी बिजली देनी पड़ेगी। तो एक तरफ हम सस्ती बिजली देना चाहते हैं, हम पूरी बिजली देना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास कोयला है, हम कोयले का उत्पादन नहीं कर पा रहे। कोयला जिनको हमें प्राथमिकता में देना चाहिए उनको हम दे नहीं पा रहे। दूसरा, जो कैप्टिव माइंस हमने इंडस्ट्री को दिया है, थर्मल पावर्स को दिया है, वो कैप्टिव माइंस में फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं। अब वो एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं, वर्षों हो गए साहब। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 10 कैप्टिव माइंस दिया हमको, एक भी क्लियरेंस नहीं आई आज तक। हम कैसे काम चालू करें? तमाम इस तरह से परेशानी, धीरे धीरे कोशिश हो रही है, कोयला भी प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है। ये बड़ी साजिश हो रही है कि प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाए कोयला उत्पादन का काम भी, चूंकि वो जिस तरह से देख रहे हैं कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी हम गए थे धनबाद हमारी कोयला कमेटी गई थी, मंत्री जी भी गए थे। वहां देखा जहां सबसे ज्यादा कोयले की भयंकर चोरी हो रही है, भयंकर गड़बड़ी है, सबने जाकर के देखा, लेकिन उसका कैसे उपाय किया जाए, कैसे उसको रोका जाए, इस दिशा में सरकार की मंशा नहीं दिख रही। There are big issues here. Whenever there is a talk of privatization, well, certainly there is a section of this whole the huge population which opposes this move. What would you like to say about the problems here?
Okay, I think the problem related to coal can be looked at from two ends. One is what is the existing kind of infrastructure and mechanization that we have, and the other is that there is huge leaps in technology that have happened the world over. Now, if we are to keep up with the production of electricity, then about 70% of our coal is moving in that direction. The new, say in the 12th plan or even in which going forward, we are going to be actually looking at coal as a major resource. Today it's known also in climate change circles as a the worst form of inputs because it causes the maximum amount of pollution. However, so we need, on one side, we need the technologies from wherever to be able to utilize the coal in a much more better way with least amount of pollution and in the best possible manner in terms of conversion. I completely agree that there are a lot of structural issues, and this is one place where I think privatization can play a huge transforming role. And we would welcome, at least I would welcome, privatization of the so that the technologies can be brought in, and this is made much more economically sustainable. Because if you, like he said, if we import coal, we are going to have a hit on our costs. That's why you'll find lots and lots of power projects which have all stalled. And this, to my mind, is a grievous problem that we are facing today. बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही हिरिंग साहब, अगर सरकारी स्तर पे भी बात की जाए तो 7 ऐसे कोल प्रोजेक्ट्स हैं जो पोल्यूशन इंडेक्स पे खरे नहीं उतर पाए, तो उन्हें उन पर रोक लगाई गई है। ऐसे कई कोल प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 50 के करीब है, तो सरकारी आंकड़े हैं जो कहते हैं कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिल पाई, इसीलिए वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए। आपको नहीं लगता कि सरकार को इन चीज़ों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है? एक तरफ कोयले का जो खनन है वो भी होता रहे और उसके साथ ही पर्यावरण जो है उसके साथ भी तालमेल बिठाया जा सके। ये भी बहुत गंभीर समस्या है। हमारे जैसे हाल ही में हमारे जो वन और पर्यावरण विभाग के जो कमिटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, उसमें हमारे इसमें चर्चा हुई। एस्टीमेट कमेटी में भी जैसे हाल ही में हमारा अभी जस्ट हफ्ता भर हुआ है, जिसमें हमने जो दोनों जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं और कोल के जितने भी ऑफिसर्स प्लस कंपनीज़ हैं उनको हमने बुलाया और इस विषय में हम उनके जो क्या समस्या हैं उनको हमने पूछताछ की इस विषय में। तो इसमें जो वन और पर्यावरण विभाग ने उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसमें करीब, जैसे आपने कहा कि करीब 50 ऐसे जो है राज्य हैं जहाँ जो खनन जहाँ करते हैं वहाँ अभी तक उनका क्लियरेंस नहीं हुआ, चाहे वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस या फॉरेस्ट क्लियरेंस हो। लेकिन अभी पर्यावरण को देखते हुए, सारा ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए शायद काफ़ी रोक लगाए गए हैं, लेकिन देयर आर लाइक नो, देयर गो एंड नो गो एरियाज। तो इसमें लेकिन जो गो एरियाज हैं यहाँ पे भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन वो अभी जो पिछले बार की जो मीटिंग हुई है इसमें उन्होंने हमको आश्वासन दिया, कोल डिपार्टमेंट्स को भी आश्वासन दिया कि इसको हमने शीघ्र इसको हम इसको निपटा लेंगे। खनन को लेकर के ये जो प्रॉब्लम एरियाज खनन जो है इसमें जैसे हम इनसे हम सहमत करेंगे कि खास इवन उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए मैंने भी एक क्वेश्चन दी रखी है कि यहाँ की जो अवैध खनन जो है इसको किस प्रकार को हमको रोकना पड़ेगा। इसको अगर हम नहीं रोक पाएंगे तो देखिए हमारा भविष्य सबसे ज्यादा नुकसान अंधकार हम देख रहे हैं। जहाँ पर कोल माइंस काम किसी राज्य में, मैं एनसीएल एक बता रहा हूँ, सिंगरौली का नॉर्दर्न कोल फील्ड्स की बात बता रहा हूँ, मैंने खुद जाकर के माइंस देखी है और जहां पर माइंस का काम हो चुका है फिर वो फिलअप किया आपने, तो फिर आपको वृक्षारोपण करना चाहिए, नहीं किया आपने, तो उस कारण से एनवायरमेंट क्लियरेंस कैसे मिलेगी आपको नेक्स्ट काम करने के लिए? आपने उसको फुलफिल नहीं किया, जो शर्तें थी उन शर्तों के जानबूझ के पूरा नहीं कर रहे, वो खुला जगह तो पड़ा हुआ है, किसान अलग नाराज है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग नाराज है, और आप कहते हो कि साहब हमको ये नया परमिशन दो, तो ये भी तो देखना पड़ेगा, ये किसकी जवाबदारी है? डिपार्टमेंट की जवाबदारी है, उसको फुलफिल कराए वो। Fine. So there are a lot of loopholes that have to be plugged here. Thanks very much, gentlemen, for talking to us. Quite a pleasure having you all here. Time now to quickly take a look at all the important news stories that are making headlines this morning. A look at the news that became the front page headlines in various newspapers today. The Indian Express writes, effectively ruling out any rollback, Prime Minister Manmohan Singh has made it clear that retail FDI will benefit our country. States are free to not to allow it. It also writes,
For all its current vociferous opposition to 51% FDI in multi-brand retail, it was the BJP-led NDA that had pitched for 100% retail FDI 10 years ago. The Times of India writes, government appears to be on the brink of a possible setback as it can't break FDI logjam. TOI also writes that the draft report of the Standing Committee on the Lokpal Bill has proposed the exclusion of all judiciary from the ambit of Lokpal, but has asked for a new law to ensure transparency in appointment of judges and policing and prosecuting corruption in the judiciary. The Hindustan Times writes, on retail FDI, Congress is uneasy, opposition is adamant and Prime Minister is firm. Also, Anna Hazare is on war path again, gives government 23rd December deadline to pass the Lokpal bill. The Hindu writes, Kanimoi walks out of Tihar after more than 190 days. It also writes, opposition wants floor test for FDI in retail. The Asian Age writes, all-party meet fails to end parliament logjam. Opposition unconvinced by Pranab Mukherjee's assurance. Hindi newspaper Navbharat Times has also made FDI and retail as its top headline. Hindustan, Dainik Jagran and Jansatta has also made bail to Kanimoi, FDI and retail and Lokpal bill as its top headlines. Bureau report. तो खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का मुद्दा हिंदी और अंग्रेजी अखबारों की सुर्खियों में छाया हुआ है। एजेंडा में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अब हम आपको ले जा रहे हैं लोकसभा संसदीय कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए। नमस्कार।